that they are the binary compounds of an element with oxygen. So a compound having two elements and one of them that would be oxygen. So that is called as the oxide. Okay. So we are going to start with the details of the types of oxides. Walaikum assalam. So types of oxides. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Okay, beta. So we are going to start with the types of oxides today. So there are four types of the oxides. The first one that is called as the basic oxide. The second one that is called as the acidic oxide. The third one that is called as the amphoteric oxide. Achha, last time the test I have given you, in that test a lot of questions they were present from the from this topic. I did not notice it. I think that I have finished all the acid and bases, but that was not finished. Okay, so we will complete that topic, and after that we will discuss the test whatever we have done, and also do some more questions of the acid and bases. Okay, so don't you worry about it. After the completion of acid, bases and salts, these all questions they will become fun for you. Don't you worry about it. Okay, so if anybody is thinking I was unable to do that question, don't you worry. We will do these questions later on. Okay, but I have to give you a test. I thought that we have done this topic. That was my mistake. I sent them the test in which the questions relating to the oxides they were present. Okay, so we have got amphoteric oxide, and then the last oxide we have got, that is neutral oxide. Okay, guys, last time I have told you as well. Beta, you knew? Yes, today is your first day? Yes, sir. And yours? First day today. So basically we had started with the chapter acid and bases first of all. Okay, so this is the end of chapter basically. Yes, sir. Okay. Okay, guys, so this is the periodic table. Okay, so in that periodic table, if you see, I have told you last time as well. So below group 3, one element, just put a line up here. This is group 4, put a line under 2 elements of group 4, and put a line under 3 elements of group 5, and put line under 4 elements of group 6, and join all of these lines, so you will get a staircase. I have told you about this staircase before. So this is the staircase. Okay, so all the elements which are present below the staircase, these are called as the metals, and all the elements which were present above the staircase, all these are called as the non-metals. Okay, so you have got the metals and you have got the non-metals as well. Okay, so now, what are the oxides? I have told you oxides are the compound
of an element with oxygen. Okay, so there are the two elements only in the oxide. One of them would be oxygen and the other one should be something else. Okay, so keep remember, my dear students, what are the basic oxides, what are the acidic oxides, and what are the amphoteric oxides. Basic oxides, they could react with acids only. Acidic oxides, they could react with bases only. Amphoteric oxides, they could react both acids and bases and are insoluble in water. Okay, so neutral oxides, they do not react with acids or bases. Okay, so these are the definitions of these oxides. Okay, now keep remember, what are the basic oxides? I have told you in the periodic table, you made a staircase like that. These are groups, group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is 8. Below one element of group 3, just put a line. Below two elements of group 4, put a line, and put a line under 3 elements and then 4 elements, and join all of these lines. So you will get a staircase. All these elements which are present below the staircase, they are metals. So keep remember, my dear students, what are the basic oxides? If you join the metal with oxygen, oxide means oxygen. So all the metal oxides, they are basic oxides, except for 4 metals. To remember these 4 metals, you have to learn this word, Zolt. The word Z comes from zinc, zinc oxide, and its formula is ZnO. The word A, that comes from aluminium oxide, and its formula, that is Al2O3. And the word L comes from lead oxide, and its formula, that is PbO and PbO2. All both of them, they are the lead oxide. And the last one, T for tin, tin oxide, and its formula is SnO and SnO2. So these 4 metals, if they are joined with the oxygen, they are the amphoteric oxides. And amphoteric oxides, my dear, they can react both acids and bases. Okay, so if you put them in the acid, they behave as base. If you put them in the base, they behave as an acid. Okay, so they can react both acids and bases, but they are insoluble in water. And to keep remember the amphoteric oxide, you should remember this word, Zolt. Z for zinc, A for aluminium, L for lead, and T for tin. So zinc, aluminium, lead, and tin oxides, they are amphoteric oxides, whereas all the other metals present up here, okay, if you join the oxygen with them, they are the basic oxides, like sodium oxide, copper oxide, iron oxide, calcium oxide. So all these oxides, these are all metals. And if you join the oxygen with them, all these are the basic oxide except for Zolt. Zinc, aluminium, lead, and tin, their oxides are amphoteric. You got it, guys? Everybody got it? Yes, sir. Okay, now we are going to start with the acidic oxides. What are the acidic oxides?
All these are non-metals. The things which are present above the staircase, all these are non-metals. If you join the non-metal with oxygen, oxygen is called as the oxide. Okay, so all the non-metal oxides, they are as acidic except for the two things, and those two things, they are CO, carbon monoxide, and water. Okay, so this is called as the carbon monoxide, and this one is water. So these two are non-metals. Carbon and hydrogen, they are non-metal, but their oxides, they are neutral. They do not react with any acid or with bases. But all the other oxides, my dear, they are acidic oxides like CO2, NO2, SO2, SO3, P4O6, P4O10. Okay, so all these oxides, they are non-metal oxides. These things are present up here. If you see, sulfur is present up here, nitrogen is present up here. Okay, carbon is present up here. So all these oxides, they are the acidic oxide. Okay, except for carbon monoxide and water, these two are the neutral oxides. You got it? Everybody got this concept? So keep remember this thing. The things which are present under the staircase, they are metals. All metals oxides, they are basic except for salt, zinc, aluminium, lead, and tin. Their oxides are amphoteric, whereas all other metals oxides, they are basic. Just like that, all the non-metal oxides, they are acidic except for carbon monoxide and water. These two are the neutral oxides. You got it? So basically, this is the end of the chapter, acid and bases only. We have to complete still the salt. Okay, but we will discuss the questions relating to your test, whatever you have done last time. Okay, so I think most of you people get worried about it that you did not get the concept. I'm going to do the questions with you. Okay. Excuse me, sir. जी, you are excused, my dear. बोलो. सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस जो है वो सॉल्ट्स में आता है? जी, सॉल्ट्स में आता है बेटा, अभी करना है मुझे. ओके सर. इस वीक में हो जाएगा सॉल्ट भी यार, टेंशन ना लो भाई, ये मुश्किल चैप्टर है, इतने आसान टॉपिक नहीं है ये, एसिड बेस एंड सॉल्ट. इसको टाइम लगता है समझाने के लिए, इसमें खपना पड़ता है. आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मेरे बच्चों, और आप लोगों की तरफ भी स्क्रीन कर रहा हूं. तुम लोग भी जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ यार इधर प्लीज, इफ यू डोंट माइंड. जी बेटा बोलो, कुछ कहने लगे थे. Okay guys, have a look up here. हैं? कहाँ से नजर आ रहा है? नहीं अंदाजा नहीं, आगे आ जाओ यार. अंदाजा नहीं भाई, मैंने समझाना है, तो वहां से तो आपको समझ नहीं ना लगेगी. यार ये बाबा नीचे देख रहे हैं, टूट गया रहता है. जी बेटा आगे आ जाओ यार, मैं आपको फिर कह रहा हूँ आगे आ जाओ थोड़ा सा. आप लोगों के पास है, उसके साथ शेयर कर दो जरा.
बेटे सबको नजर आ रही है स्क्रीन? Yes, sir. Okay guys, now I'm going to do the questions and have a look how to have. आगे आ जाओ यार, इधर पकड़ के चेयर आ जाओ, आगे आ जाओ, ये बात, चेयर पकड़ के आगे आ जाओ यार। ये लो यार, आप नजर आ रहे हैं सबको? मैं आ रहा है नजर? बैठ जाओ यार। Okay, my dear students, now I'm going to read the question and just listen every step very carefully. Which oxide is amphoteric? I have told you the four metals oxides, that is amphoteric: salt, zinc, aluminium, lead, and tin. So have a look up here. Aluminium oxide is present up here. So A, that is your answer. You got it? और ये ऑनलाइन Yes, वाले sir. क्वेश्चन हो कर दो यार। म्यूट नहीं किया हुआ, बता म्यूट किया हुआ? म्यूट नहीं किया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे बच्चों, द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2। ठीक है जी, एसिड की पीएच उसने हमें दे दी है, कितनी है? 2 है। What will be the pH of acid after the addition of 10 ग्राम of sodium chloride? पहली चीज याद रखो, कोई भी एसिड हो वो सिर्फ 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकती है: मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तीसरी चीज मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, और चौथी चीज मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है जी, इन चीजों के साथ जो है वो एसिड रिएक्ट कर सकता है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें ना तो मेटल है, ठीक है जी, ना ही मेटल ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी नहीं जुड़ी हुई, मेटल हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, मेटल कार्बोनेट भी नहीं है इसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड जो है वो इसके साथ असल में रिएक्ट ही नहीं करेगा। जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो जो इसकी ओरिजिनल पीएच है 2, वही की वही रहेगी। तो बी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? समझ लगी है सबको? क्योंकि एसिड सिर्फ Yes, sir. 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है: मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है ये मेटल क्लोराइड है, तो मेटल क्लोराइड के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता मेरे बच्चों। तो जब रिएक्शन नहीं होगा तो उसकी जो पीएच 2 है वही की वही रहेगी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन वो कह रहे हैं, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया था सॉल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। तो ये सी और डी में से आंसर है, ये 2 गलत हो गए। ये पोटेशियम, पोटेशियम अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम जो है ये ग्रुप 1 में आ रहा होता है जी, यहाँ पे पोटेशियम मौजूद है, तो ये मेटल्स में मौजूद है। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो इन दोनों में से आंसर है सी और डी में से। मैग्नीशियम जो है ये भी मेटल्स में आ रहा होता है, यहाँ पे होता है ग्रुप 2 में। ठीक है जी, तो ये भी आपका बेसिक ऑक्साइड है। और सल्फर जो है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक है। तो डी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि विच पेयर ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर ओनली? कि किस चीज के रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर जो है वो आपका बनता है जी। ठीक है, तो एसिड जो है मैंने आपको बताया था कि 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं: मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ। और इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट तो बनता ही बनता है सब में। ठीक है, मेटल में हाइड्रोजन बनती है साथ, मेटल ऑक्साइड में सॉल्ट तो बनता ही बनता है, साथ वाटर बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड में सॉल्ट तो बनता ही बनता है, साथ वाटर बनता है, और मेटल कार्बोनेट में सॉल्ट तो बनता ही बनता है, साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये 2 चीजों के रिएक्शन के रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है जी, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड, इसमें तो बनेगा ये सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी जो है वो बनेगी जी। ठीक है, और सॉल्ट और वाटर भी बनेगा, क्योंकि सॉल्ट और वाटर तो बन ही रहा है इसमें। अगला जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इसके रिजल्ट में सॉल्ट बनता है, वाटर नहीं बनती, हाइड्रोजन साथ बनती है। ठीक है जी, तो दैट इज योर आंसर डी। यू गॉट इट? यस सर। सॉरी, तो सॉल्ट और water है। सॉल्ट एंड वाटर ओनली? सर ये डी में हाइड्रोजन गैस बनेगी। सॉरी, में सर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। हाँ तो हाइड्रोजन बन रही है तो वो सॉल्ट और वाटर कह रहे हैं ना सिर्फ बने। अच्छा सॉरी यार, मैं क्वेश्चन पढ़ा ही, बी आंसर है, गलती हो गई जी। ठीक है, घूम गया हूं मैं भी। बी आंसर है, सॉरी बेटा, इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड से मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। उसने कहा है सिर्फ सॉल्ट और वाटर बने, मुझे नजर आया था कि शायद वो कह रहा है सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ चीज बने। सॉरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन, किसमें न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही। एसिड के जो 4 रिएक्शन है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट, ये सारे रिएक्शंस जो हैं इनको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए जी कहां पे ये हो रहे हैं। ये मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन है। अमोनिया आपकी मैंने बताया था बेसिक गैस होती है, तो ये एसिड के साथ मिलेगी तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन है। यहाँ पे एसिड मेटल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? कौन सा? क्योंकि ये मेटल क्लोराइड है बेटा, मेटल क्लोराइड। ये पहला वाला जो रिएक्शन है ये अमोनिया बेसिक गैस होती है, ये बेस होती है, तो बेस एसिड के साथ मिलेगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। मेटल ऑक्साइड ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, मेटल हाइड्रोक्साइड ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, मेटल क्लोराइड है। यू गॉट इट जी? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, which solution containing 1 mole per dm cube of compound would have the lowest pH? लोवेस्ट पीएच किस चीज की होती है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड दुनिया में सिर्फ 3 होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी पीएच जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, तो इनकी पीएच सबसे लोअर होगी। तो सबसे पहली चीज तो लोवेस्ट पीएच एसिड्स की होती है, तो एसिड एक तो ये है और एक ये है, और ये तो एसिड है ही नहीं, ये कट गए, और इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। जी बेटा कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट ऑक्साइड्स के बारे में करेक्ट है? हमने अभी ऑक्साइड्स पढ़े हैं तो इन्हीं से रिलेटेड होगा। अ बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अभी मैंने बताया कि बेसिक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड होता है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड तो नहीं होता, ये गलत है। एसिडिक ऑक्साइड्स कंटेन आयनिक बॉन्ड। एसिडिक ऑक्साइड में नॉन मेटल के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ी होती है, तो ये नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ी होगी मेरे बच्चों तो ये भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कंटेन अ मेटल, तो ये बात आपकी करेक्ट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन आ रही होती है, तो मेटल आ रही होती है, तो ये करेक्ट है। सी दैट इज योर आंसर। अगला क्यों नहीं है? बेसिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज गैसेस। मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो मेटल के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी होती है मेरे बच्चों ये आयनिक कंपाउंड बनाती है, क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये गैसेस तो हो ही नहीं सकते। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जी, सो दिस इज रॉन्ग एज वेल। चलें आगे जी। और ये ऑनलाइन वाले यस या नो तो कर दिया करो यार, सोए हुए हो तुम लोग। यस सर। चलो आगे। Yes, sir. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। विच स्टेटमेंट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज नॉट करेक्ट? कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? मैंने अभी बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं दे ओनली रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस, और पानी में ये डिसॉल्व नहीं होते, तो उसने लिखा हुआ है दे डिसॉल्व इन वाटर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपको गलत ऑप्शन ढूंढनी थी, तो ए दैट इज योर आंसर। अगले देखिए सारे करेक्ट हैं, क्यों? दे आर ओनली बाय मेटल्स।
तो salt, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन मेटल्स होती हैं, तो ये करेक्ट है। They react with aqueous sodium hydroxide to give salt. सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी चीज के साथ हाइड्रोक्साइड आ जाए तो वो बेस होती है, तो बेस के साथ ये रिएक्ट करते हैं। They react with aqueous acids, तो एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आपकी करेक्ट हैं। ए आपकी रॉन्ग ऑप्शन है, तो ए दैट इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो हमें कह रहे हैं the sentence describe two metals and their oxides. Metal X can be copper but its oxide, तो कॉपर का ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होगा जी। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो इसका मतलब है बेसिक ऑक्साइड होगा, तो बेसिक आपका बी या डी में से आंसर है। और अगला मेटल Y कैन बी बिकॉज इट्स ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, ठीक है जी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड सॉल्ट होते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, तो एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम आपका बी में आ रहा है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं जी। अगला क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस is added to water, a solution of pH 7 is formed. pH 7 न्यूट्रल चीज होती है, और न्यूट्रल ऑक्साइड आपके सिर्फ दो हैं, कौन कौन से? एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक आपका वाटर है, ठीक है जी। तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके सी बन रहा है, तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? तो बोल तो दो। यस सर। यस सर। अगला देखें जी, अगला क्वेश्चन है जी, a sample of air was bubbled into air. सबसे पहली चीज आपकी जो एयर होती है उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन होती है 78%, इसमें ऑक्सीजन होती है 20 to 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%, नोबल गैसेस इसमें होती हैं जी 1%, और इसमें वाटर वेपर्स होते हैं जी वेरिएबल, ये चेंज करते रहते हैं। ये आपकी एयर की कंपोजिशन है। तो वो कहता है कि एयर को पानी में डालते हैं, द पीएच ऑफ वाटर स्लोली चेंजेस फ्रॉम 7 to 6। 7 to 6 का मतलब एसिडिक हो जाती है। तो एयर के अंदर कौन सी चीज जो है वो एसिडिक है? मैंने आपको पहले ही बताया नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो एक ही ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपको मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये एसिडिक ऑक्साइड होता है जी। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ए दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? गॉट इट। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, और वैसे भी ये एयर में एग्जिस्ट नहीं करता भाई, हमारी नॉर्मल एयर में ये मौजूद नहीं होता, ये पोल्यूशन होती है। ओके सर। मेहरबानी सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि विच रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस इज एन एसिड बेस रिएक्शन। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि दो चीजें ऑक्साइड की फॉर्म में होंगी, ये ऑक्साइड नहीं है, ये भी ऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। कैल्शियम जो है ये मेटल के अंदर आता है, ग्रुप 2 में आता है, तो ये मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक हो गया। और सिलिकॉन ये नॉन मेटल में आता है, तो ये आपका एसिडिक ऑक्साइड हो गया। तो बेस और एसिड मिलते हैं तो आपका ये सॉल्ट बन रहा है जी, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सी। अगला क्यों नहीं है? Fe2O3 ये मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये न्यूट्रल होती है, ये ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? यस सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। What is the property of hydroxide ion? हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन होता है जी। It combines with hydrogen to form water. ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता, हाइड्रोजन आयन के साथ, H पॉजिटिव के साथ ये कंबाइन करके वाटर बनाता है जी। तो हाइड्रोजन आयन के साथ, तो उसने हाइड्रोजन लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। It is present in water.
तो पानी जो है उसके आयंस होते हैं H पॉजिटिव और OH माइनस, तो पानी के अंदर ये मौजूद होता है, तो बी दैट इज योर आंसर। मैंने आपको बताया था कि पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन दोनों की अमाउंट एक दूसरे के इक्वल होती है, इसीलिए पानी जो है वो न्यूट्रल होता है जी। ये मैंने आपको pH स्केल जब पढ़ाया था वहां पे बताया था कि जो 7 pH होती है वहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। पानी का फॉर्मूला H2O या इसको HOH भी कहते हैं। तो पानी हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाता है और इन दोनों की अमाउंट एक दूसरे के इक्वल होती है, सो दैट इज व्हाई इट्स इसमें OH माइनस आयंस मौजूद होते हैं। अगला क्यों गलत है? It readily breaks down into hydrogen ion and oxide ion. OH माइनस जो है ये कभी टूटता ही नहीं है, तो ये गलत होगा। It travels to the cathode, ये वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है, इसको छोड़ दो आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में लग रहा है जैसे बड़ा मुश्किल है। वो कह रहा है कि विच चेंज इज मेड बाय एडिंग एन एसिड। एसिड जो है वो 4 चीजों से रिएक्ट कर सकता है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट का जो एंड होता है वो या तो नाइट्रेट उसके एंड पे आ रहा होता है, या सल्फेट आ रहा होता है, या क्लोराइड वगैरह आ रहा होता है, या कार्बोनेट आ रहा होता है जी। तो ये चीजें आ रही होती हैं सॉल्ट के एंड पे। तो पहली चीज तो देखें कि मेटल, मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट, तो ये चीजें हैं जी, ठीक है। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट बन रहा है, तो ये डी, यही आपका आंसर है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो ये तो उसने मेटल ऑक्साइड बना दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड का रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, उसने कॉपर बना दिया है, मेटल बना दिया है, ये भी नहीं हो सकता। और अगला, मेटल का रिएक्शन जो है वो उसने करवाया नहीं हुआ, उसने कॉपर सल्फेट को कॉपर में चेंज करवाया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. यस सर। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगला क्वेश्चन है कि विच कैल्शियम कंपाउंड डज नॉट इंक्रीज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। हमेशा याद रखो जो बेस होती है वो एसिडिक सॉइल्स की पीएच को इंक्रीज करती है, और बेसिस कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताई भी है। कौन कौन सी होती है? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें जो है वो आपकी बेस होती हैं। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है जी। और ये कैल्शियम सल्फेट, ये तो वैसे ही जो है वो आपका रिएक्ट ही नहीं करेगा एसिड के साथ, ठीक है। तो ये मेटल कार्बोनेट, ए दैट इज योर आंसर। मेटल कार्बोनेट जो है ये आपका सॉल्ट होता है असल में, इसके एंड पे कार्बोनेट आ रहा है, लेकिन ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये पीएच को जो है वो आपकी इंक्रीज करके न्यूट्रल पे ले जाएगा, लेकिन बेसिक पीएच पे नहीं लेके जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कैल्शियम कंपाउंड डज नॉट, अच्छा सॉरी, इसमें वो कह रहा है कि कौन सी चीज एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो एसिड के साथ ये सल्फेट रिएक्ट नहीं करेगा, डी। मेटल ऑक्साइड कर जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड भी कर जाएगा और मेटल कार्बोनेट भी कर जाएगा, ये सारे रिएक्ट कर जाएंगे, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपकी बेस होती है, ठीक है। एक्सेस में जब इसको डाल रहे हैं तो इसकी पीएच जो है वो अबव 7 होगी, अबव 7, ठीक है। तो अबव 7 पीएच किसकी आ रही है? ये 10 आ रही है, तो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। अगला क्वेश्चन देखें, विच सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू गिव हाइड्रोजन। किसके रिजल्ट में वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है जी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दें, ये मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मिक्स होके इसमें आ गया है, छोड़ दें इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 है एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। आपको मैंने बताया था ये रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। ये पहली 3 मेटल्स जो हैं इनका अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन वायलेंट होता है,
और आखिरी 3 मेटल्स का हाइड्रोजन से नीचे वाली, इनका अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएं तो इनका रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉपर और जिंक आपके पास मौजूद है, तो जिंक तो रिएक्ट कर जाएगा एसिड से, लेकिन कॉपर नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है। कॉपर किस कलर का होता है? पिंक या रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये आपके पास जो है वो रेसिड्यू की फॉर्म में बच जाएगा। तो रेसिड्यू की फॉर्म में आपके पास कॉपर बचेगा, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, तो डी, दैट इज योर आंसर। और कलरलेस सॉल्यूशन, जिंक रिएक्ट करके एसिड के साथ जिंक क्लोराइड बना देगा जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो डी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देख लें। ये अगला क्वेश्चन भी मोल से रिलेटेड था, जिन्होंने मोल्स पढ़ा हुआ है उनको तो ये आता है, बाकियों को नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड solution was added to dilute hydrochloric acid. The pH of the solution in the flask was measured intervals until no further change of pH take place. तो बेटे ये नीचे एसिड है आपका, तो एसिड की pH जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी pH 1 के करीब होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH 12 से लेके और 14 के बीच में होती है। तो जब आप इसको गिराओगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, pH आपकी न्यूट्रल 7 हो जाएगी, लेकिन जब ये एक्सेस में इसके अंदर आ जाएगा, ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा, तो pH चेंज होके 12 to 14 तक चली जाएगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? द pH वुड इंक्रीज, और इंक्रीज करके कहां तक चली जाएगी? 12 तक चली जाएगी, तो डी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस। Yes. अच्छा जी, अगला देखें। Which mixture would react with dilute sulfuric acid to form two different gases? आपको पता है कि एसिड जो है वो मेटल और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सिर्फ गैसेस बनाता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, और मेटल कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अगर ये मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ेगा तो तब सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनाता है, गैस नहीं बनती, नो गैस। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी किस किस में गैस बनती है। कॉपर तो वैसे रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट एसिड से, क्योंकि मैंने बताया था हाइड्रोजन से नीचे वाली चीजें डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट ही नहीं करती, तो कॉपर तो करेगा ही नहीं, ये गलत हो गया ए। कॉपर कार्बोनेट करेगा, गैस बनेगी। मैग्नीशियम मेटल है, ये भी करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो बी आपका आंसर है। अगला क्यों नहीं है? कॉपर का टू डिफरेंट गैस, तो टू डिफरेंट गैसेस ही बन रही है ना, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम एसिड से रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस ही है। अगला, कॉपर कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन होगा तो गैस नहीं बनती, नो गैस। ये कॉपर ऑक्साइड से गैस नहीं बनती, ठीक है जी, तो ये सी और डी भी नहीं हो सकते, तो बी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट?